Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll solve all your queries related to COVID-19, and eminent panel of guests will be joining us soon. We'll introduce them as soon as they come with us, they join us, and you can also give us a call and ask your questions on social media handle, that is Twitter and Facebook. The numbers wherein you can call will be flashed in a while in some time. So these are Delhi numbers. So remember to prefix 011 before you dial our landline numbers. I'm Abhishek Mahajan and with me is my colleague Rajni. शुक्रिया अभिषेक। कोविड संक्रमण ने दुनिया के आगे कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग को जीवन शैली का, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना और हैंड हाइजीन को गंभीरता से लेना सबसे बड़ा बचाव है। इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन सामने नहीं आती, जरूरी एहतियात अपनाकर ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप भी इस संक्रमण को लेकर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे विशेषज्ञ आपके हर सवाल का जवाब देंगे। Right, health experts, in fact they'll join us soon. Dr. Achal Srivastav will be with us, who is the Professor Neurology Department, AIIMS, and in fact he's with us. Welcome sir. Dr. Anupam Prakash, Professor, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College. Good to see you sir. And Dr. Jugal Kishore, who is the HOD, Community Medicine, Safdarjung Hospital, is also with us. Welcome sir. Welcome to DD News and DD India. If I can come to you, Dr. Achal Srivastav first. How do we stand as of today in tiding over the crisis of coronavirus? Because people really want to know that how do we stand as of now? Hello everyone. I think we are in a much better position than what we could have talked a month back. Specifically in Delhi, it's a very good condition, I will say. Okay. The death rate has reduced, the improvement rate is going very high. So in that sense, we are in a pretty good state. But should we not worry about the increase in cases? Active cases are declining. Recovery rate is also, we have reached almost 65%. Mortality rate wise also we are doing far better than other countries. But the cases are rising. Is it because of the rise in number of testing? Not only because of that, because see the movement has increased. People have started going from one place to other place, and also I do see a little bit of laxity on the part of people. So those may be the reason behind not only the number increase or testing number increase, rather the laxity from people. जी हमारे साथ डॉक्टर जुगल किशोर भी जुड़े हैं और डॉक्टर अनुपम प्रकाश भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से जब संवाद किया था और एक सवाल पूछा गया था उनसे हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कि हम हर्ड इम्यूनिटी में शामिल हो गए हैं या नहीं। तब एक बड़ा ही रोचक जवाब आया था, हर्ड इम्यूनिटी अगर आती है तो ये फायदेमंद ही हो सकती है। लेकिन क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी और बार बार इसकी बात की जाती है। आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जुगल किशोर, ये कैसे काम करती है? थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में। हर्ड इम्यूनिटी और चर्चा में भी है। लोगों को जानना चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली एनिमल के साइंस से आया है, जिसमें हर्ड जो एक हर्ड होता है, जैसे हमारे बकरियों का या भेड़ों का एक हर्ड होता है, उसमें सारे जो भेड़ बकरियां होती हैं वो एक तरह की हर्ड होती हैं। तो उसके अंदर एक दूसरे को वो कैसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं और उसका एक मतलब है। लेकिन जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी मींस कि आप प्रोटेक्शन उस हर्ड से कैसे ले रहे हैं। जो आपके आसपास लोग हैं उनसे आपको एक इम्यूनिटी कैसे मिली। मान लो कि आप 1000 पॉपुलेशन के अंदर हैं और उसमें 900 लोग ऐसे हैं जो इम्यून हैं, तो 100 लोग अगर इम्यून ना होने के बावजूद भी उनमें इंफेक्शन नहीं फैलता, क्योंकि चारों तरफ जो आपके लोग हैं वो इम्यून हैं। तो उस तरह के प्रोटेक्शन को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस केस में कोविड के अंदर अगर ज्यादातर लोग हमारे आसपास ऐसे होंगे जो इन्फेक्ट होकर उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गए और वो प्रोटेक्टिव हैं, तो जिन लोगों को इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है तो वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन उन्हीं के थ्रू होगा और वो इम्यून है।
इसलिए वो ट्रांसमिशन एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर जुगल किशोर, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आप हर्ड इम्यूनिटी के बारे में दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी कि है कि कोविड संक्रमण से जो मरीज ठीक हो जाता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी कितने दिनों तक रहती है, वो ड्यूरेशन क्या होती है, उसके बारे में अभी कुछ तय नहीं है। तो ये मानना कि एक बार अगर व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया है तो क्या वो हमेशा के लिए इम्यून हो जाएगा? ऐसा अभी रिसर्च में चल रहा है, लेकिन जो हमारा पहला एक्सपीरियंस जैसे कि कोरोना पहले हुए हैं, मर्स है, सार्स है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि दोबारा इन्फेक्शन होने की कम चांसेस हैं, और ये तो टाइम ही बताएगा कि इसमें कितना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें ये शो करता हो कि दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। और वो कितना प्रोटेक्टिव होगा, एंटीबॉडीज कितने दिन तक रहेंगे, जो अभी साइंस या रिसर्च चल रही है उससे यही पता चल रहा है कि कुछ महीनों तक शायद उसका इफेक्ट रहे। उसके बाद में फिर एक और तरह की हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो टी सेल और टी सेल्स इम्यूनिटी होती है, वो लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे समय तक रहती है। तो उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर इन्फेक्शन एक बार होता है तो डेफिनेटली उससे प्रोटेक्शन रहता है खुद को भी और दूसरों को भी। Right, it hasn't been decided as of now. But coming back to herd immunity, Dr. Jugal Kishore, herd immunity, it was in the press conference also that it hasn't been developed in India and is not in fact, it is not an option in India. Is it because of the size of the population? Yeah, this is actually again and again asked that what is the percentage of the population should have infected, then only we can tell that this is the reaching to herd immunity. Whenever we have an infectious disease like measles or some other infection, the herd immunity reached when the people are 90% or 80% are infected. Then only 10% of people get protected. So the herd immunity required in those cases are very high. In this case also the infection, this is an infectious disease, and from the very beginning we were expecting that more than 60%, if the people are reaching to the infection, then only the people will get some kind of protection. The herd immunity will reach when the 60 to 70% will be there. Still we have not reached to that level. The two survey we have done, that is ICMR and Delhi government, are showing that we are just reaching to only just 23% or 30% of the population have the antibodies. So we can't say that we are reaching to herd immunity. Okay. But definitely there are other research which are showing that there are some population in general which are actually resistant to infection. So that is very interesting. This study is reported by German scientists taking the sample of Germany and UK, which is showing that as high as 50% of the people are actually resistant to this COVID virus. बिल्कुल। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, जब कोविड संक्रमित मरीज अस्पताल जाता है खासकर इलाज के लिए, जब तय हो जाता है कि वो पॉजिटिव है, बहुत सारे मरीजों ने अपनी कहानी बयां की है, बहुत सारे मरीजों से बातचीत हुई है, वो बताते हैं कि थोड़ा सा इलाज इसका डिफरेंट है। मायने ये हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं और बार बार जो डॉक्टर की जब ज़रूरत होती है तभी डॉक्टर मौजूद होता है। वो जो एक अकेलापन है, जो जब मरीज़ शारीरिक रूप से भी जूझ रहा है और वहाँ पर एक अकेलापन ज़रूर महसूस होता है आइसोलेशन में, उससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने इस बात की शिकायत की है, वो अकेलापन उन पर हावी हो जाता है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी इस पर ब्लॉग शेयर किया था, उससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और ये कि बहुत सारे मरीज जो डिस्चार्ज हुए उन लोगों ने बाद में बताया, हमारे पास करीब एक समय में 1000 मरीज भी रह चुके हैं। तो उससे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि जरूर अकेलापन आता है, कुछ डिप्रेशन में जाते हैं लोग, पर उसमें कई प्रकार के उपाय किए हम लोगों ने, जो हम लोगों ने किए वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे उन लोगों को हम लोगों ने वार्डों में टीवी लगाने का अरेंजमेंट किया जिससे अलग अलग प्रोग्राम लोग देख सकें। वो लोग आपस में बात करते हैं, हालांकि बेड बहुत दूर दूर होते हैं पर फिर भी आपस में बात कर सकते हैं। उनको फोन प्रोवाइड किया गया जिससे कि लोग घर में बात कर सकें। वैसे कई जगह पे बैन था कि फोन नहीं रहेगा, हाँ वीडियो बंद था, लेकिन ये जरूर है कि फोन पे लोग बात कर सकते हैं। हम लोग खुद भी फोन प्रोवाइड करते थे कि आप अपने घर के लोगों से बात कर लीजिए जिनके पास फोन नहीं थे। और इसके अलावा जो है एक प्रयास किया गया था, हालांकि वो सोच में ही रह गया कि जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनमें से कुछ लोगों को वॉलंटियर के रूप में बुलाया जाए और वो वार्ड में लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर सकें। पर ये सोच में ही था, ये एक्चुअली में अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यवधान थे, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन टीवी का सिस्टम और फोन पे बात कर सकने का सिस्टम काफी प्रभावी रहा जी। But Dr. Anupam Prakash is also with us, who is the professor of Department of Medicine, Lady Harding Medical College. Doctor, we talk about people are washing their hands, they are responsive now, they have become very responsible, they are maintaining social distancing norms. But how close are we to the vaccinations? They come and ask, and they must be asking you also, ये जाएगा कब? नमस्कार, बहुत ही मुश्किल सवाल है जो आपने पूछा है। देखिए, मेरा मानना है ये जाएगा नहीं, ये रहेगा, तो और हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो जैसा कि रंजनी मैडम ने भी कहा कि हमें जो है ये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो अपना हाथ धोना है ये निरंतर ध्यान रखें। ये ना सिर्फ कोरोना से बल्कि और बीमारियां जो हैं, बाकी बीमारियों से भी बचाएगा हमको जी। तो ये एक तो पहली चीज है। दूसरी चीज है बचाव का ये जो त्रिकोणीय तरीका है, ये तो करना ही करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और फेस मास्क। इसके अलावा जो है, जो आपने कहा वैक्सीन का मुद्दा, तो वैक्सीन जो है रिसर्च कई तरीके से चल रही है, भारतवर्ष में भी चल रही है, और इसमें वैक्सीन जो है उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भी आएगी। तो 4-6 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि ये जो है अलग अलग फेजेस होते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम से कोई भी चीज जो डेवलप की गई है वो एकदम से ह्यूमन बींग्स पे, मानव के ऊपर जो है बिना एक्सपेरिमेंट किए डाल दी जाए। तो इसके लिए कई तरीके की विधियां चल रही हैं और बहुत तरीकों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन बना सकें। तो कई स्टेजेस चल रही हैं। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, रशिया कह रहा है नवंबर में वो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेगा। लेकिन ये सब अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। ये कहना कि हाँ हम सफल हो जाएंगे वैक्सीन बनाने में और वैक्सीन बनने के बाद कारगर रहेगी कि हम जो है इसको बीमारी को रोकथाम कर पाएंगे, ये दो अलग अलग सवाल हैं। तो पहली चीज है कि हमारे हाथ में वैक्सीन आए, दूसरी चीज है कि जो हमने वैक्सीन डेवलप की है वो कारगर रहे, जो अच्छे तरीके से हमें मदद कर सके कोरोना से बचाव में। तो इसको अभी समय लगेगा, तो लेकिन तब तक हमें जो है त्रिकोणी जो मैंने कहा वो तीनों चीजें हमें करनी है जिससे कि हम बचाव अपना कर सकें कोरोना से, वो बहुत जरूरी है। त्रिकोणीय जो प्रणाली है, रणनीति है, वो हमें अपनानी होगी। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, बड़ी अहम बात है कि अब जो है वो भारत में त्योहारों का जो है मौसम शुरू हो रहा है। अगस्त के बाद से ही हमारे जो संस्कृति में हर धर्म में त्योहार शुरू हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है अपने मन को समझाना, और ये कोरोना वायरस अभी चंद महीने हुए हैं हमारी जीवन शैली में से आए हुए। तो क्या सावधानियां आप बरतने को कहेंगे हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, खासकर त्योहार जब शुरू हो रहे हैं, तो किस तरीके से खान पान का ध्यान रखें और इस वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा और मुद्दा ये बहुत अच्छा उठाया आपने, क्योंकि ऐसा है कि त्योहार अगस्त से शुरू हो जाते, तो कल 1 अगस्त थी और त्योहार कल शुरू हो गया। और आज अखबार में भी आपने देखा होगा जामा मस्जिद पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है नमाज पढ़ते हुए लोगों की जो है फोटो आई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं मानूंगा पिछले 4-6 महीने जो हैं, 6 महीने से जो हम लोग जूझ रहे हैं करीब करीब कोरोना वायरस से, बीमारी से लड़ते हुए, तो त्योहार आना एक अच्छा शगुन भी है, क्योंकि त्योहार आने से हम लोगों का सबका जो है एक हर्ष उल्लास का जो है हमारा वातावरण हो जाता है। तो एक जो बीमारी से जो पिछले हम काले बादलों से पिछले 6 महीने से घिरे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि ये एक तरीके से त्योहार आ रहे हैं, तो हमें इसमें ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपने कहा, बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि अगर हम खान पान की चीजों में भी जो है, जो चीज हम घर में बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने ऐसा नहीं है कोरोना काल में जो है मनाए नहीं है जन्मदिन या उत्सव, लेकिन घर में बनाते हैं, अपने करीब लोगों में करते हैं, उसको जो है शेयर करते हैं।
अब ये है कि जो मिलना जुलना है जो हम लोगों के मानव के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी कहा कि मरीजों का अकेलापन जो है उसको दूर, तो ये एक हमारे उत्सवों का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें कि हम लोगों का मिलना जुलना रहता ही है। कल रक्षाबंधन भी है, तो कई लोगों ने जो है इसको हमें थोड़े दिनों के लिए, मेरा मानना है, हमें टालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे पास भी जो मेरी बहनों ने भेजी हैं तो वो उन्होंने चिट्ठी से भेज दी हैं, जो उसके साथ शगुन होता है तो प्लांट भेज दिया है, उसके साथ प्लांटर भेज दिया है। तो ये इनोवेशंस करने पड़ेंगे। तो इसका जो है मिलना जो है अभी खास तौर से जब तक कि जैसा कि डॉक्टर जुगल ने भी कहा कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अभी सक्सेसफुल हो या ना हो, वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती है, आपने जैसे कहा, तो जब तक ये चीजें नहीं है तब तक हमें उत्सव एक अलग तरीके से बनाने पड़ेंगे। जैसा कि हम लोग आजकल डीडी न्यूज पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग करें। हमारी फैमिली में भी कल सवेरे 8 बजे का मुहूर्त निकाला है कि सवेरे जो है रक्षाबंधन जो है सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर लेंगे और घर में जो भी सदस्य हैं उनसे बंधवा लेंगे। तो ऐसी चीजें इनोवेशंस करना पड़ेगा, हमें नई नई प्रणालियां देखनी पड़ेंगी। और जब तक ये हमारा कोरोना का संकट टल नहीं जाता तब तक हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग या नेट को यूज करें, वीडियो कॉल्स हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, वॉइस कॉल्स हैं, फोन पे बात करें अपने लोगों से, ये चीजें बहुत हमारे कारगर होंगी। Dr. Jugal Kishore is smiling there, sir. Can we go out and buy sweets from outside? You can make innovative sweets in your house. Yeah, They are much tastier, Yeah. and you will definitely like the home sweets. डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, होम आइसोलेशन को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा असमंजस भी होता है। क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं और मान लीजिए कोई मरीज है जो होम आइसोलेशन में है, तो उसे क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि होम आइसोलेशन आजकल सरकार ने अलाउ कर दिया है, कुछ प्रदेशों में भी अलाउ कर दिया गया है। वरना अगर आपको याद हो, पहले बिल्कुल बैन था। कोरोना पॉजिटिव होते ही एक वैन आती थी और ऑलमोस्ट कहना चाहिए ऐसा लगता है जैसे किसी कैदी को उठा के ले जा रहे हो, और ले जाया जाता था, अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता था। तो अभी तो होम आइसोलेशन अलाउ कर दिया गया और पब्लिक में भी थोड़ा सा खौफ कम हुआ है इस बात का कि होम आइसोलेशन में रहने से जाने को खतरा है। होम आइसोलेशन में जो ध्यान देने की बात है वो 2-3 तरह की है। पहली तो ये है कि होम आइसोलेशन में आपको अपने घर में एक रूम में आइसोलेट होना पड़ेगा और आपका बाथरूम अलग होना चाहिए। और खाना देने जो लोग आते हैं, एक तो मास्क का उपयोग करें, खाना देंगे चले जाएं, कम से कम एक्सपोजर होना चाहिए। और दूसरी चीज जो खास बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि बच्चे जिस घर में होते हैं वो जरूर मिलना चाहते हैं। तो उसमें वो अभी हम लोग बात कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, या फिर जो है जिस तरह से जूम प्लेटफॉर्म आजकल है, बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म हैं, तो उस पे जो है बच्चों से बात कराई जा सकती है, क्योंकि बच्चों ही सबसे ज्यादा उनको रहता है कि मुझे जरूर मिलना है, पापा बीमार है तो क्या हुआ। तो इस तरह से बच्चों को दिक्कत रहती है मेनली। ज्यादा उम्र के लोगों की एक दिक्कत है, जिन घरों में ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको तो मैं समझता हूँ, जैसे आप खुद आइसोलेट हो रखे हैं क्योंकि आप बीमार हैं और कोरोना पॉजिटिव है, तो उतना ही ध्यान बुजुर्ग लोगों पे जो भले ही निगेटिव हो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जितने लोग उनसे मिलें बहुत कम देर संपर्क करें और मास्क लगा के रखें। और जो जैसे अब घर ही है जिसमें मान लीजिए पहले से एक पॉजिटिव मरीज है, तो उनका रूम जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। फ्लोर अगर अलग अलग है तो और भी अच्छा है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि घर कितना बड़ा है, कितना सिनेरियो है घर पे, क्या 2 बाथरूम है नहीं है। और अगर एक ही बाथरूम है तो ऐसी स्थिति में मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से इस समय खास करके दिल्ली में तो बहुत सारे खाली हैं अस्पताल, इतने मरीज नहीं हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर घर पे आइसोलेट कर सकने की सुविधा नहीं है तो कहीं पे भर्ती हो जाए। We have also started getting questions on the social media handle on Facebook. First question, it's been asked by Sunil Kumar. He's asking that is corona in post-infectious sequel disease is critical? Dr. Achal, if you can answer this question. हाँ, देखिए, पोस्ट इन्फेक्शियस जो मामला है उसमें 2-3 तरह की घटनाएं देखा हम लोगों ने। मतलब कोरोना इंप्रूव करने के बाद भी कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कुछ लोगों को स्ट्रोक हो गया, और एक बीमारी होती है जीबी सिंड्रोम, वो भी देखा हम लोगों ने। कुछ लोगों में जीबी सिंड्रोम हो गया, जीबी सिंड्रोम जिसमें हाथ पैर कमजोर पड़ जाता है और कई बार सांस भी कम पड़ने लगती है। तो इस तरह से पोस्ट इन्फेक्शियस इलनेस के रूप में भी लक्षण, मतलब कुछ बीमारियों को हम लोगों ने नोटिस किया है और इससे संबंधित लेख भी विभिन्न जर्नल्स में आए हैं। जी,
हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं इस बीच, लता जुड़ गई हैं दिल्ली से। लता, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। पहले मैं आप सब डॉक्टर्स का और आपकी टीम का, दूरदर्शन का धन्यवाद करती हूँ जो हमें इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आजकल बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरा पहले एक किडनी फेलियर हुआ था, अभी तो मैं ठीक हूँ, पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है। मेरी बॉडी पर रैशेज आ रहे हैं बहुत सारे, चेहरे पे, इधर उधर, और आती क्रिया बार बार मुझे हो रहा है। मैं हॉस्पिटल टेलीमेडिसिन में फोन करती हूँ तो बेशक कि आप नहीं आए तो ज्यादा बेटर है। ऐसे में और मेरे कान भी बह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू। जी डॉक्टर जुगल, अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, आई थिंक डॉक्टर अनुपम शुड आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही आप जो अगर जैसे गुर्दे के मरीज हैं, आप ठीक हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी, और जैसे आप बता रहे हैं कि आपके सुनने में दिक्कत है, तो मेरा मानना है कि आप टेलीमेडिसिन ठीक है चल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में जिसमें कि किसी भी ऑर्गन को, शरीर के किसी भी अंग को थ्रेटन करते हैं या दिक्कत होने का संभावना रहती है, तो आपको अस्पताल जाके जरूर दिखाना चाहिए। तो आसपास जो भी अस्पताल है उसमें अपना पूरा प्रोटेक्शन करें, अपना मास्क लगाएं, हाथ का सैनिटाइजर साथ लेकर के जाएं और जाकर के एक बार डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं। मेरे हिसाब से आपको एक बार दिखाना जरूरी है। And there is one more question for you, Dr. Anupam Prakash. Ashwini Kumar is asking that what is the lifespan of COVID-19 virus on clothes, fruits, vegetables and other eatables? देखिए, दूरदर्शन के माध्यम से मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं, हमें ये नहीं समझना है कि कोई भी सतह जो है वो कुछ देर में ठीक हो जाएगी या कुछ देर में जो है कुछ जल्दी हम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। हमें कोई भी सतह छूनी है उसके बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। Right. उस पे नहीं रहिए कि हाँ ये 12 घंटे से यहाँ पे है इसलिए ये नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 12 घंटे पहले जो है ठीक हो गई थी और उसके बाद किसी ने इसके ऊपर कीटाणु कहीं से संक्रमण नहीं हो सकता। तो जब भी कोई भी सतह छुइए, बाहर से होकर के आइए, कोई चीज बाहर से आ रही है तो उसको जरूर धोएं। अगर आप बाहर जाके कोई चीज छूते हैं तो अपने हाथ जरूर धोएं। तो अपने हाथ मुंह से पहले पहुंचे उससे पहले जरूर धोएं। कोई भी सतह कभी भी ये इस पे नहीं रही है, इस मिथ्या चीज में नहीं रही है कि हाँ ये सतह जो है बहुत देर से खाली पड़ी है तो यहाँ कोरोना वायरस नहीं है। जी, एक और हमारी दर्शक हैं संचिता सिंह हैं, वो पूछना चाह रही हैं कि एक्सरसाइज करते हुए या वॉकिंग करते हुए कई बार पसीना आ जाता है और वो पसीना अगर हम छू लेते हैं नाक के आसपास के हिस्सों में तो क्या उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है? पसीने से इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। आपका अपना पसीना है, आपने छुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद हाथ सैनिटाइज करें। अपना आपका हाथ मुंह तक जाए उससे पहले उसे जरूर सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं चाहे सैनिटाइजर से करें, क्योंकि आपके हाथ में संक्रमण हो सकता है। पसीना पोंछें, उसके बाद फिर से सैनिटाइज करें। मेरा मानना यह है अगर हम इतना प्रिकॉशन लेंगे तो हमारे हाथ से कभी भी संक्रमण जो है मुंह तक नहीं पहुंचेगा, नाक तक नहीं पहुंचेगा, वो बहुत जरूरी है। Okay, and we'll quickly take this question also. Dr. Achal, if you can answer this, is there any latest update about the advancement of COVID vaccine? Although Dr. Anupam has already answered this question, but if you can elaborate on it. Yes, we are still waiting. I think Dr. Anupam has actually answered the whole question already. We are waiting for the developments in the field of vaccination. I must tell that India is also doing a good research work in this field with the collaboration with ICMR and the other governments also. Various places at AIIMS also we are testing the COVID vaccine. So we are waiting for results. It is too early to comment on anything. जी डॉक्टर जुगल, बड़ी अहम बात है, वैक्सीन को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लोगों के मन में सवाल भी उठते हैं वैक्सीन कब आएगा। मेरा सवाल आपसे है, मान लीजिए वैक्सीन आ भी जाता है तो क्या उससे बदलने वाला है? इलाज तो होगा, लेकिन अगर जब ये इसी संक्रमण के साथ हमें रहना है, जैसा कि सारे संगठन बता भी रहे हैं कि अब ये संक्रमण हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो वैक्सीन आ जाने के बाद भी क्या हमें वो सारे बचाव अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बना लेने चाहिए जिनसे हम बच सकते हैं? Hygiene and sanitation is one of the tool with public health कि जो 70% of the जो हमारी डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज होती है, चाहे वो डायरिया हो या स्किन इन्फेक्शन हो या रेस्पिरेटरी डिजीज हो, उनसे हमारे को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हमारे देश में सैनिटेशन एंड हाइजीन होता या तो हम और अच्छे से अपने देश में हेल्थ को अच्छा कर सकते थे। तो अगर हम इसको अपनी जीवन शैली बना लें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा।
वैक्सीन के ऊपर निर्भर रहना, इसमें दोनों चीजें हैं कि अच्छी भी बात है क्योंकि साइंस ऑलवेज टेल यू दैट व्हाट नीड टू बी डन, बट एट द सेम टाइम many of the people do not believe in it. बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो नहीं लेना चाहते, उनकी अपनी सोच है या धारणाएं हैं, कुछ पद्धतियां हैं जो उसको मना करती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बात। लेकिन आपका ये सवाल कि वैक्सीन अगर क्या होगा, अगर हमारे पास में वैक्सीन होगी तो क्या होगा, अगर हम एग्जाम्पल लें दिल्ली का, और दिल्ली में 70-80% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो सिर्फ हमारे को 30% या कहना चाहिए उतने लोगों की जरूरत है कि उनको हम वैक्सीन देंगे, और शायद वो हर्ड इम्यूनिटी से भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किसको दें किसको ना दें, क्योंकि जिनमें एंटीबॉडीज हैं उनको वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही है कि अगर जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, ये कहते हैं कि इन्फेक्शन से अच्छा है कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो वैक्सीन से आए। वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आता है वो काफी लंबा रहता है और सेफ रहता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इन्फेक्शन से हमारे अंदर इम्यूनिटी आए, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए। लेकिन अगर इसमें कोई भी डिले होती है तो डेफिनेटली नेशनल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी शायद जरूरत कम पड़े। हो सकता है कि हमारे को नेक्स्ट ईयर या हमारा जो ग्रुप है, जो बच्चे पैदा होंगे, उनको जरूरत शायद पड़े, लेकिन हमारे को उन लोगों की जरूरत ना पड़े जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है। But Dr. Jugal Kishore, is vaccination the ultimate solution? What do we believe in that vaccination will come and the disease will go and will be fully protected? No, the answer is yes, no. The reason is that we have so many vaccines, and still we are having problem. Either it can be flu or maybe I think the swine flu is another example. We had the pandemic and we had the vaccine, and still every year we are having the infections. So not everybody is getting it because they know that infection is very mild in nature. Similarly, COVID is going to be, when it is part of the life, people already understand 99% it is not going to kill you. So it is depend on the people's whether they want to take the vaccine or not. That is why that is cannot be taken as only solution. We have to have multiple strategy to control the infection, and the best strategy is to have your own self protected. Your immune system is good by nutrition and sanitation and hygiene. Definitely vaccine play a role, but the problem is that still we don't know that second dose is required, or we require booster dose, and how frequent the booster dose is required. These are all area of research, and the answer will come in next coming years. It is not just after few months we are going to get this answer. जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रामकिशन जुड़ गए हैं जयपुर से। आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैंने आज टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट में हार्ट पेशेंट हूँ, और उसको मैंने अपने मतलब पास से ग्लव्स दिए थे और सर्जिकल मास्क दिया था, और साथ में फेस शील्ड भी दी, और साथ में मैंने भी N95 मास्क लगाया था और सर्जिकल मास्क लगाया था और शील्ड भी लगाई थी, लेकिन वो मेरे पास लगभग पौन घंटा आधा घंटा रहा था, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं मुझे? जी, डॉक्टर अनुपम प्रकाश। देखिए, अगर आप मास्क लगाए हुए हैं और सामने वाला भी मास्क लगाया हुआ है, तो चांस जो कि संक्रमण आपसे या उससे चला जाए या उससे आपको आ जाए, ये चांस बहुत ही कम होता है, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आप प्रोटेक्शन कर भी नहीं सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में इसको बिल्कुल ही निकाल दीजिए, नहीं तो वहम पलेगा अपने दिमाग में। अगर आपने मास्क लगाया है, हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद सामने वाला हैंड सैनिटाइज करता है, उसके बाद आपका सैंपल लेता है और मास्क लगाता है, तो चीज वहां पे खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा नहीं सोचिए, इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जी, डॉक्टर अचल, एक बड़ी बात, अच्छी बात डॉक्टर अनुपम ने कही है, वहम की बात। और ये जो वहम है, जब से कोविड संक्रमण शुरू हुआ है तब से हमारी जिंदगी का ये भी एक हिस्सा बन गया है। कितनी सफाई रखनी है, कैसे उचित दूरी बनाए रखनी है, कितना सैनिटाइजेशन अपनी जिंदगी में शामिल करना है, इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस चीज से कैसे बचे। अगर किसी की मदद अगर हम करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारी का होने का, संक्रमण का डर है, वो हमें रोक रहा है, उससे कैसे बचा जाए?
देखिए, इस बात को अभी डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने बहुत अच्छी तरह बताया। अब वहम को पालने की जरूरत नहीं है, बात को समझ लीजिए और उतना ही उपाय करें, तो डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अभी पिछले श्रोता ने सवाल पूछा था और बड़ा क्लियर कट जवाब दिया डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने कि किस तरह से वो सुरक्षित है। तो देखिए, दो तीन चीजें हैं ध्यान रखने की। एक तो आपने मास्क यूज किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोनों पक्ष मास्क यूज करें, दो आदमी बात कर रहे हैं तो दोनों पक्ष अगर मास्क यूज करते हैं तो बहुत ही कम संभावना है कि संक्रमण होगा। दूसरी बात, आप जब भी हाथ आपने कुछ काम किया, कुछ यूज किया, कोई सरफेस छुआ, तो उसके बाद सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करते हैं तो ये और बड़ा प्रोटेक्शन है, फिर और भी कम संभावना रहती है कि कोई आपको संक्रमण हो सकेगा। तीसरी चीज जो आती है, आप कभी कभी अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि लोग धीरे से मास्क खोलते हैं और खुजली कर लेते हैं, तो ये इतना गलत तरीका है। अब उसके पहले तो आपने सैनिटाइज नहीं किया। बार बार डॉक्टर अनुपम भी बता रहे हैं कि जब भी आपको कुछ करना है, कुछ भी सरफेस छुआ आपने, तो उसके बाद सैनिटाइज करिए। उसके बाद आप जो है अपने हाथ को अपने मुंह तक ले जाएं। तो मास्क हटाने से पहले आपका हाथ जरूर साफ रहना चाहिए। और तीसरा बात आता है कि कितनी देर एक्सपोजर होता है आपका किसी भी संभावित या संक्रमित मरीज से, तो कितने देर एक्सपोजर होता है उसको बचाइए। कम से कम एक्सपोजर रखिए तो संभावना बहुत ही कम रहेगी संक्रमित होने की। आधे घंटे लंबा समय था, यूजुअली कहा जाता है कि लेस देन 15 मिनट्स का समय रखिए। तो यूजुअली आप देखेंगे कि 15 मिनट तक भी किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 5 मिनट शायद बहुत होता है, और उतनी देर में आप जो कुछ बात करना चाहते हैं कन्वे हो जाती है। तो आधे घंटे तो ज्यादा है, इसलिए 15 मिनट मैक्सिमम समय, इससे आप इससे नीचे रहिए तो संभावना बहुत कम रहेगी संक्रमण होने की। But Dr. Achal, if you can tell us step by step, if someone, for example, if we are going out, coming to office, and then we are going home, what should be our steps? I mean, how should we remove our mask? What should we do in the first instance? And then is it necessary to take bath first and then meet our family members? If you could tell us in elaboration, I mean, what should be the steps? एक एग्जाम्पल की सहायता से चलते हैं। जैसे आप घर से चले और अपने ऑफिस तक गए और फिर वापस आते हैं, तो जब आप घर से निकलते हैं, आपको पता है आपके घर में अभी संक्रमण नहीं है, मास्क लगा के निकल रहे हैं, और उसके बाद आप चले जाते हैं। हाथ आप पहले ही उस समय जब निकले हैं तो एक बार आप ऑलरेडी वॉश कर चुके हैं, डिसइंफेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद निकलते हैं, आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, सपोज करिए आपको खुद ही दरवाजा खोलना है। दरवाजा खोलने के बाद फिर से आपको हाथ धोना, वॉश करना पड़ेगा या फिर जो है सैनिटाइज करना पड़ेगा, और फिर आप अपनी चेयर पे बैठते हैं। कोशिश करिए कम से कम चीजें छूना पड़े, जितना काम हो उतना ही यूज करिए, और मास्क बिल्कुल नहीं छूना है किसी भी कीमत पे। और सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि इनवेरिएबली आदमी मास्क हटा के कुछ न कुछ छू लेता है या खुजली कर लेता है, कभी कुछ खा लेता है, लेकिन उसके पहले हमेशा सैनिटाइज करिए अपने आप को। जब भी मुंह के आसपास आपको जाना है, सैनिटाइज करिए, और खास करके मास्क खोलना है। मास्क नहीं खोलते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा वो बिल्कुल मेंटेन कर रहे हैं, मास्क खोलते ही नहीं किसी कीमत पे जब तक घर नहीं आते। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसके बाद जब आप घर आए, फिर से वहां से ही सैनिटाइज होके चले। मान लीजिए आप अपनी ही कार में आते हैं और उसमें और कोई नहीं बैठ रहा, आपकी अपनी कार है, फिर भी कोई और कुछ विंडो छुआ है, किसी ने आपका कार का हो सकता है कि हैंडल छुआ हो, कुछ न कुछ कोई छुआ है, तो उस समय में आप निश्चित रूप से फिर से अपने आप को सैनिटाइज करिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। घर पहुंच जाते हैं, आपको पता है आपके घर में अभी कोई ऐसा इन्फेक्टेड व्यक्ति नहीं है, तो आप घर के हिसाब से रह सकते हैं। तो हर स्टेप पे मुंह के आसपास पहुंचने से पहले सैनिटाइज करना जरूरी है। इसको कोई बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए कि मुंह का मास्क हटाने के बाद आपको कुछ छूना है तो सैनिटाइज करें। And also, Dr. Anupam, mask also, you had told us in the previous show also that there's a proper way to remove the mask. We should hold the string and then remove the mask and not to touch the front side of the mask. देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो मास्क है वो हम पहनते इसलिए हैं कि उसके अंदर की जो सतह है वो हमारे मुंह से लगी हुई है, वो बिल्कुल साफ रहती है, और जो बाहर की सतह है वो ही हमें बचाती है किसी भी इन्फेक्शन से, धूल मिट्टी से, किसी भी चीज से। तो खासतौर से कोरोना के संक्रमण को हमें मास्क का जो बाहरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा संक्रमित है। तो अगर जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा, अगर हमें कुल्ला करना है या बीच में आपको प्यास लग रही है, तो जब आप उतारे मास्क तो आप ठीक है उसकी पट्टी पकड़ें, उससे पहले अपना हाथ स्टेराइल करें, अपना हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद मास्क की पट्टी पकड़ के बाहरी हिस्से को छू करके उतारें और हाथ सैनिटाइज करें। फिर उसके बाद कुछ खाए पिए,
और फिर उसके बाद ही दोबारा से हाथ सैनिटाइज करके उसे मास्क को पहने। अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि अगर आपका हाथ अंदरूनी हिस्से पे लग गया तो आप ये समझिए कि वो संक्रमित हो गई और फिर आपने उसे मास्क को अपने मुंह पे लगा लिया तो संक्रमण आपके मुंह तक पहुंच ही गया। राइट किसी भी हालत में अंदरूनी हिस्से को, मास्क की जो अंदरूनी सतह है, अंदरूनी हिस्सा है, उस पे हाथ किसी भी हालत में नहीं लगने चाहिए। और बाहरी सतह को अगर छुएं तो हाथ जरूर उसके बाद सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। जी, हमारे साथ एक दर्शक हैं, सोशल मीडिया के द्वारा अपना सवाल पूछना चाह रही हैं। आप में जो विशेषज्ञ इसका जवाब देना चाहे, नीलोफर खान है, पूछ रही है कि 25 जुलाई से उनका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो ख़त्म हो गया, आज नवा दिन है, और ये पूछ रही हैं कि उनका जो फीवर है वो 99 के आसपास है, और किस तारीख तक पूछ रही हैं कि उन्हें आइसोलेट होना चाहिए, और प्रेशर जो है उनको अपनी छाती में भी किसी तरीके का दबाव महसूस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, पूछ रही हैं। डॉक्टर अनुपम, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। जो इन्होंने कोरोना की जांच नहीं कराई है मैडम ने, मेरे ख्याल से तो कोरोना की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो आइसोलेशन तो चाहिए ही है, अगर नेगेटिव है तो भी मैं इनको राय दूंगा कि बिल्कुल आइसोलेटेड रहें 17 दिन, क्योंकि बुखार है और जो लॉस ऑफ स्मेल है ये तो बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, मतलब मैं कहूंगा कि अभिन्न हिस्सा है एक कोरोना का। अगर ये सिम्टम है, ये लक्षण है, तो 99% यही मानिए कि कोरोना है। तो 17 दिन, 27 तारीख उन्होंने बताई, 27 या 25 तारीख बताई, तो उससे 17 दिन जरूर जो है ये अकेले रहें, जो है आसपास जो है किसी से मिलना जुलना नहीं है, और मास्क लगा करके रहें, क्योंकि इनसे भी इन्फेक्शन, संक्रमण किसी और को नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरी चीज है, अगर इन्हें दिक्कत लगती है छाती में, इन्हें जो है ये चेस्ट टाइटनेस लग रही है, कसापन लग रहा है, तो सैचुरेशन जरूर मॉनिटर कराएं अपना। अगर SpO2 90 सैचुरेशन प्रोब से जो अगर 95% से ज्यादा आ रहा है तो घर में रहें, नहीं तो अस्पताल जाकर के जरूर भर्ती हो। घर पे रहना लाजमी नहीं है अगर इनका सैचुरेशन 95% से कम है पल्स ऑक्सीमीट्री के। Okay, hope we answered your question. We have one more caller with us. Vinay Kumar is calling from Uttar Pradesh. जी, विनय जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे को कुछ दिनों से थोड़ा गले में हल्का फुल्का इन्फेक्शन टाइप का है जी, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी, या जो कभी इस तरह से गले में खराश या पेन होता है या फिर थोड़ी बहुत खांसी होती है, तो इसका मतलब ये ना समझे कि ये कोरोना ही होगा। आप घर की जो घर पे कोशिश करें कि गरारे करें, और मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे ठंडा पानी पीने से या आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपने कोई ऐसी चीज खाई हो जिससे गला खराब हो सकता है, तो सब चीज को कोरोना समझना ठीक नहीं है। आप गरारे कीजिए, आप स्टीम लीजिए, और इससे आपको डेफिनेटली परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर उसके बाद में भी आपको फीवर होता है या फिर साथ में आपके जैसे डॉक्टर अनुपम वाज टेलिंग के सेंस में कोई गड़बड़ी होती है या टेस्ट में गड़बड़ी होती है, या फिर आपके शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, या सांस में कोई तकलीफ होती है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अदरवाइज हर खांसी को ये ना समझे कि ये कोरोना हो सकता है। जी, डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, आपसे पूछना चाहेंगे, आप न्यूरो के विशेषज्ञ हैं। कोविड संक्रमण के दौरान देखा गया है कि लिवर से जुड़ी हुई, फेफड़ों से जुड़ी हुई, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा मरीजों के अंदर देखी गई है, और ये हाई रिस्क में आए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, न्यूरोलॉजी का क्या अनुभव रहा है कोविड संक्रमण के दौर में? क्या उससे जुड़ी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा सामने आई हैं? देखिए, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने बीच में बताया था। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है अनलेस कि हम कोई न्यूरोपैथोलॉजिकल टेस्ट करें कि ये घटना या कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस कोरोना से ही हुई। ये प्रूव करना अभी के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उस दौरान हमें स्ट्रोक की घटनाएं मिली। स्ट्रोक जिसमें हम पैरालिसिस की बात करते हैं। कुछ लोगों में फेशियल नर्व पैरालिसिस यानी सिर्फ चेहरा टेढ़ा होने की घटना मिली।
कुछ लोगों में हमने ये भी पाया कि ब्रेन के अंदर जो है खून के थक्के जम जाना, वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा हाल में हम लोगों ने कई बार जीबी सिंड्रोम पाया, जिसमें कि हाथ पैर कमजोर पड़ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें थी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। लेकिन अब निश्चित रूप से यह कह पाना कि ये बिल्कुल कोरोना से हुआ, ये अभी संभव नहीं। हाँ, ऑब्जर्व जरूर किया हम लोगों ने। डेफिनेट एसोसिएशन प्रूव करना सिर्फ इस बेसिस पर कि आजकल हमने ऑब्जर्व किया, ऐसा असंभव है। जी डॉक्टर अचल, आप भी के सवाल जो जवाब है उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक दर्शक है रीमा, पूछ रही है कि उनकी बाईं आंख में परेशानी हो रही है, वो लगातार फड़क रही है। देखने में समस्या नहीं हो रही है, लेकिन जब मोबाइल पर या फिर किताब बहुत पढ़ती हैं तो उनकी आंख जो है लगातार फड़कती रहती है और उस पर एक स्ट्रेस महसूस कर रही है। तो क्या उन्हें किसी आंख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर ये न्यूरो से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है? देखिए, आंख के आसपास का जो ये फड़कन की बात है, ये मतलब शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको कभी ना हुआ हो। बहुत ही बिनाइन होता है ये, और यूजुअली स्ट्रेस से, नींद कम होने से, ये सब कारणों से हुआ करता है। तो बहुत मतलब इसको हम लोग मोस्ट बिनाइन फैसिकुलेशन की जगह बोलते हैं हम लोग। कोई रियल कारण इसके पीछे नहीं होता है। ज्यादातर नींद की परेशानी या फिर कोई प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, दिस दैट, ये सब कारण होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत परेशानी की बात है। हाँ, बहुत लगातार परसिस्ट कर रहा हूँ तो कभी किसी न्यूरो फिजिशियन से मिल सकती हैं। बहुत रेयरली कभी कभी कारण होते हैं, अदरवाइज तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी करने की बात है। And also, Dr. Anupam, the questions that we are getting, people are calling us and we are getting a lot of questions on social media also. They are scared with a normal cough and cold. If they have pain in the neck, they'll give us a call that should they go for COVID test. That fear, that panic, and also like Rajni was also mentioning that Amitabh Bachchan has also mentioned in that blog that mental aspect is very, very important. And the doctors who are coming to address you, they are also in PPE kit. So how should we address these people? बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी इस चीज के ऊपर काफी टिप्पणी की और बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। और ये चीज जो है, कोरोना वायरस ने जो पूरी मानव जाति है उसको झकझोर के रख दिया है। और इसमें इस तरीके के रिस्पॉन्सेज, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अमिताभ बच्चन भी एक साधारण आदमी तो है, उसमें कोई बात नहीं है, तो हर आदमी को ये दिक्कत तो हो ही रही है। और ऐसा नहीं है हम डॉक्टर्स को दिक्कत नहीं हो रही, हम चिकित्सकों को भी ये जो है ये परेशानी हो रही है कि कैसे डील करना है। क्योंकि कोरोना वायरस ने जो हम लोगों का एक मानव का दूसरे मानव से जो संबंध है, जिसे कहते हैं मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, मैन इज ए सोशल एनिमल। मानव जाति को एक दूसरे से अगर हम अलग रख दें तो हम पागल हो जाते हैं। Right. तो वैसे ही अगर घर में आजकल आइसोलेशन में जैसे हम लोग लॉक हो गए हैं, चाहे जो बीमार है वो अलग आइसोलेशन में है और जो ठीक है वो होम आइसोलेशन में वैसे ही है। तो अगर जो बाहर जा भी रहा है तो वो मास्क लगाया हुआ है, हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। मरीजों को जो एक नॉर्मल चीज लगती है कि हाँ डॉक्टर आएगा, हम लोग डॉक्टरों को चेहरे से पहचानते हैं। हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को, संबंधी हो या दफ्तर में कोई आता है, उसको एक चेहरे से पहचानते हैं। आज की तारीख में चेहरा जो है एक सिर्फ आंखों का हिस्सा रह गया है। तो ये जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है हम लोगों के लिए, बहुत ही दिक्कत वाली चीज है और इससे हम लोगों को धीरे धीरे उभरना पड़ेगा। कोरोना से जब थोड़ा सा ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, अभी तो बढ़ ही रहा है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन फिर भी बढ़ने की स्थिति जो है, रफ्तार जो है बहुत ही कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक लेवल पे आकर के जब काफी सारा धीरे धीरे ये कम होने लगेगा तो शायद हम लोग कुछ नॉर्मलिटी पे आएंगे। लेकिन अभी जो है स्थिति, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो ये हम लोगों के रिएक्शंस हैं, चाहे वो बच्चन जी के हों, चाहे किसी साधारण आदमी के हों, चाहे मरीजों के हों जो अस्पताल में भर्ती हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये गलत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ जो मैंने कहा था कि हाँ हम जो है अपने दिमाग में वहम नहीं पालें, तो ये नॉर्मल है। कोई भी आदमी को आप बंद कर दोगे एक कमरे में या इसका इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक असमंजस वाली स्थिति है और एक परीक्षा का समय है। और मैं मानता हूं कि हम लोगों को हिम्मत रखनी है। जिस तरीके से सभी विशेषज्ञ बता रहे हैं, त्रिकोणीय मुद्दे जो हैं, जो कि जिस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, वैक्सीन आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी हमें अपना, अगर हम हिम्मत रखेंगे तो ये समय के साथ साथ कोरोना चला जाएगा और हमें हिम्मत तब तक अपनी बरकरार रखनी है। ये सबसे बड़ा हल है। Yeah, we agree with you, Dr. Anupam, but what about people
पर नीरज उससे अभिषेक एक कॉलर Yeah, we'll हमारे take a साथ caller, जुड़े- then we'll come. We'll get हमारे back. साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। नीरज दिल्ली से बात करना चाह रहे हैं। जी नीरज, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, एक्चुअली क्या हुआ, अभी 1.5 महीने पहले ना मुझे फीवर आया था। जी हेलो। नीरज हाँ। अपना जी हाँ पूछिए। मैम, 1.5 महीने पहले ना मुझे फीवर आया। हेलो जी नीरज, हमें आवाज मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। मैडम, फीवर आया, फिर मैंने ना अभी मतलब क्या हुआ, मुझे उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, फीवर आया और हमने चला दिया, 1 दिन के लिए फीवर था वो, और वो खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को 1-1.5 महीने के बाद ना मुझे थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, खाने में दिक्कत हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो मैं डॉक्टर के पास गया और कुछ सिम्टम नहीं थे, तो मैंने डॉक्टर ने बोला कि हमने एंटीबॉडी करा के देखो, तो शायद तो मैंने एंटीबॉडी कराया तो उसमें भरा हुआ दिखा, तो उन्होंने कहा नीरज आपको कोविड या तो हो रखा है या फिर अभी होने वाला है या हो चुका है बहुत पहले। जी तो वो हमने कराया। उसके बाद मैडम क्या हुआ कि उसके बाद वो रिपोर्ट जो आई ना, फिर वो मतलब मैंने फिर कोविड की जांच कराई तो उसमें नेगेटिव आया। अच्छा नेगेटिव तो आया, लेकिन मैंने पता कि अभी सिम्टम वही चल रहे हैं, मतलब एक्चुअली दर्द होना, चेस्ट में पेन और सांस में भी प्रॉब्लम आना, मतलब थोड़ा ना, तो जी। वही थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन है कि मतलब ये मतलब डर के मारे हो रहा है या मतलब समझ नहीं आया मतलब exactly डॉक्टर जुगल किशोर, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, किसी कोविड बिल्कुल। टेस्ट के फेल होने के या नाकाम होने के कितने चांसेस हो सकते हैं? मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पहले फीवर था, फीवर के बाद में फिर इन्होंने अपना टेस्ट क्या कराया, एंटीबॉडी टेस्ट कराया था या नहीं कराया था? एंटीबॉडीज टेस्ट आपने कराया था? नीरज, क्या आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, इसमें मुझे एंटीबॉडी पॉजिटिव था, नेगेटिव? जी हाँ जी वो पॉजिटिव था या नेगेटिव? नेगेटिव था डॉक्टर वो जुगल। नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव है, एंटीबॉडी मेरा पॉजिटिव था, फिर मैंने कोविड कराया, वो नेगेटिव था। ओके ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो इनका 1 महीने पहले बुखार हुआ था वो माइल्ड, और हमारे एसिम्टोमेटिक केसेस बहुत हैं कोरोना से, और जो कि अभी आप सभी को मालूम है कि थोड़ा बहुत उसको खांसी जुकाम होता है तो हो सकता है कि कोरोना हो, लेकिन एसिम्टोमेटिक भी होता है, प्री क्लिनिकल एंड बिल्कुल उसको माइल्ड सिम्टम होंगे और ठीक हो जाता है। जो एंटीबॉडीज अगर उसको मिले हैं बॉडी के अंदर तो वो इंडिकेट करता है कि इनको 1 महीने पहले हुआ था और वो पॉजिटिव आया। इस वक्त में अगर आप कोविड का एंटीजन टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, जैसा कि इनके साथ में हुआ। डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन होकर चला गया और एंटीबॉडीज आपके अंदर बन गए, तो आपको किसी भी तरह की डर की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को सोचना चाहिए कि आप अच्छे हैं, लकी है, आई शुड से द वर्ड, और किसी तरह से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सोसाइटी के अंदर जो अभी इन्फेक्शन हो रहे हैं वो 90 to 95% माइल्ड टू मॉडरेट तरह के हैं और जो ठीक हो जाते हैं अपने आप में, या फिर थोड़ा बहुत उनको हमें जरूरत पड़ती है कुछ ट्रीटमेंट देने की। जी डॉक्टर जुगल किशोर, नीरज के ही सवाल का एक मिलता हुआ सवाल है। पराग पूछना चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से उनके कानों में जो है समस्या है और सुन्न हो जाते हैं कान। इस दौरान ईएनटी के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखे, मौसम भी बदला है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर कान में कोई समस्या हो रही है तो क्या कोविड संक्रमण हो सकता है? कान के अंदर जब हमारा इस तरह का मौसम होता है जिसमें बारिश होती है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि कान के अंदर इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है जी। तो वो डेफिनेटली एक ईएनटी सर्जन के पास जाएं और अपना कान दिखाएं और उससे समस्या हल हो जाएगी। हर चीज को मैंने कहा कि कोरोना समझना गलत है। पहले से भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते रहे हैं लोगों को, स्किन के इन्फेक्शन है या आईज के इन्फेक्शन, नोज के, पूरा हमारा ईएनटी से रिलेटेड इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं जब इस तरह का मौसम होता है, या तो चेंज होता है मौसम या फिर मौसम हमारा ठंडा हो जाता है तो इन्फेक्शन होता है, और वो पहले से भी रहे। तो उनको सबको कह देना कि ये कोरोना होगा, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि कोरोना से लोग डर के ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अदरवाइज द कोरोना एज सच, कोरोना से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना उसका डर, और डर क्रिएट हो गया है। तो मेरा सभी दर्शकों से कहना है कि प्लीज आप इससे डरे ना। एक तो ये कोरोना कोई इतना घातक बीमारी है नहीं जितना इसको लोगों ने बना दिया है और क्रिएट हो गया है।
तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस डर को बिल्कुल निकाल दें। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे आप क्वेश्चन कर भी रहे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो डेफिनेटली उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों आ सकते हैं। और डिप्रेशन एंजाइटी के बाद में एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, कि बार बार वो हाथ धोता रहेगा और बार बार आप अपने सैनिटाइजर से या अपने साबुन से कोई भी हाथ धोते हैं तो आपको सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है और आपको आपकी स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अननेसेसरी हाथों को धोने की भी जरूरत है। जब आपको पता है कि आपने कहीं हाथ नहीं लगाया तो फालतू में हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन having so much stress and you are looking at the TVs and other people talking about corona. Please don't give too much value to this infection which is already under control and should not be a big issue at all. Right, thank you so much doctor, and we have one more caller with us. Gaurav is calling from Kanpur. जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर नमस्कार। हेलो जी जी पूछिए अपना सवाल, हम सुन सकते हैं आप। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं सौरभ बोल रहा हूँ कानपुर से। असल में डॉक्टर साहब हमको लास्ट 1 ईयर से ये सियाटिका पेन होता है और ये मेरा ये बैक से होके नीचे तक जाता है, ये एड़ी तक। जब मैं चलता हूँ तो न्यूमनेस फील होता है और ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तब भी होता है सर। और मैंने MRI कराया था, उसमें डिस्क हर्निएशन निकला था। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए मेरे को? ये इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाकर अपना इलाज कराएं तो अच्छा रहेगा। सियाटिका मुझे नहीं पता कि किस तरह का काम करता है। कभी कभी उनका बैठने का काम अगर होता है, काफी लंबे समय तक अगर आप बैठते हैं तो तब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है सियाटिका। अदरवाइज अगर आप हर्निएशन जैसे बोल रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन से बात करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। जी डॉक्टर अचल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे ही दौरान पर लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायत की है बॉडी एक की, किसी पर्टिकुलर शरीर के किसी हिस्से में दर्द की शिकायत, और वो मान लेते हैं कि शायद कोविड संक्रमण हो सकता है, लेकिन जबकि घर पे रहने से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करने से भी कई बार शरीर में दर्द शुरू हो सकता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। पहली बात तो यह है कि बॉडी एक बहुत सारे वायरल डिजीजेस का लक्षण होता है जिसमें बॉडी एक होता है। कोरोना में भी है, ये भी एक वायरस है और इसमें भी ये बात है कि बहुत बार जनरल बॉडी एक ऐसा पाया जाता है। अब सवाल ये है कि घर बैठे बैठे जो बॉडी एक होता है, जिसको कहा जाए कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे शब्दों में कहा जाए कुछ कर नहीं रहे, घर पे बैठे हुए आप लेटे हुए हैं, आप थोड़ी देर उठते हैं, बाथरूम तक जाते हैं, फिर से लेट जाते हैं, कोई काम नहीं है। इस तरह से भी ये इसको कहा जाए कि आप कोई नॉन फंक्शनिंग बॉडी हो गई है आपकी। तो इस तरह की बॉडी एक से बचने के लिए तो एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें कोई घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलर रूप से व्यायाम करें। बहुत लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, वो करें, दूसरे व्यायाम करें, ये सब कर सकते हैं बॉडी एक से बचने के लिए। और अगर वायरस डिजीज के साथ में बॉडी एक है, कोरोना के साथ है या किसी अन्य वायरस के साथ है, तो उसमें एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं थी, उसमें रेस्ट चाहिए होता है और उसमें हम एक पैरासिटामोल जैसी दवा का उपयोग कर सकते हैं अगर दर्द ज्यादा है। Right, well, Rajni will quickly take questions on social media, and specifically Dr. Anupam, he is mentioning your name. Kunal Mishra is asking the question on social media. He is saying, what is the reason for children less affected by COVID-19 than adults? Any scientific reason? देखिए, साइंस का जो है, साइंटिफिक पे मत जाइए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इस प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस करने से फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी मैं बात करूंगा फिर उससे और लोग इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ करेंगे। तो साइंटिफिक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं आंसर करना चाहूंगा। चलिए, बच्चों का इम्यून सिस्टम अलग होता है, एडल्ट से बच्चों का रिस्पॉन्स अलग होता है, इसलिए ये चीजें अलग होती हैं। बच्चों में सारी बीमारियां जो है वो अलग तरीके से होती है प्रक्रिया। तो बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है डॉक्टर अनुपम, ये सवाल हम बार बार आता भी है हमारे जहन में, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से घरों के भीतर हैं और कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी पर तो असर पड़ा है। तो क्या ऐसा खान पान करें? लोग इम्यूनिटी की दवाइयां भी दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि आप टैबलेट्स खाइए, फलाने विटामिन लीजिए। आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि बच्चों को कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा?
को निकलना पड़ेगा बाहर, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक ये मानता हूं कि बच्चों को जो है, बच्चों में जिस तरीके की बीमारी हो रही है, वो बच्चों में बीमारी जो है देखा जो गया है अभी तक, उनको जो है ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं हो रही, लेकिन वो कैरियर रह सकते हैं और इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, संक्रमण जो है एक से दूसरे को फैला सकते हैं। तो वो ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि बच्चों के जरिए संक्रमण घर में आ सकता है। बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं और वो अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, ये अलग बात है। हालांकि कुछ एक मोर्टेलिटी हो रही है, तो इसमें मेरा मानना है कि बच्चों को इम्यून के लिए अलग से दवा नहीं लेने की जरूरत है। उनका इम्यून सिस्टम जो है, उनको पौष्टिक आहार दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, हरी सब्जियां जरूर खाएं, अपने जो है एक फल जरूर खाएं, और अपना खाना दाल रोटी सब्जी जो है वो नियमित रूप से लें। मेरा मानना है वही सबसे पौष्टिक आहार है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। बच्चों को घर में जरूर क्रीड़ा कराएं, वो जरूर खेलें, चाहे इंडोर गेम्स होते हैं वो जरूर खेलें, जिससे कि उनका जो है, जो पूरा जो उनका ग्रोथ है, जो बढ़ने का है, वो जरूर बढ़ते रहें। उनको जो है और एंगेज करना जरूरी है, मानसिक तौर पे भी डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर जुगल ने कहा है, वो बहुत जरूरी है कि उनको एंगेज भी करके रखें, Right, उनको निकट बिल्कुल ना होने दें। Right, we are running short of time. Last question from Dr. Jugal Kishore. He's asking that I traveled by train on 28-29 July due to some unavoidable work. Now after returning back, I'm living alone in a separate room. How much duration of isolation is sufficient? Yeah, I think if you think that the exposure would be there, you were not using any mask. उन्होंने मास्क नहीं यूज किया, या जो ट्रेन में थे उन लोगों ने मास्क अगर यूज नहीं किया, और आपने सैनिटेशन या हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक्सपोजर हो सकता है ट्रेन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। और तो यही रहेगा कि आप 14 दिन से 17 दिन तक आपको अपने आइसोलेशन में अगर रहे, और देखते रहे अपने बॉडी को कि कोई आपको साइन सिम्टम होता है या नहीं होता है। अगर आपको कोई साइन सिम्टम 17 दिन तक, 14 दिन इज बेटर, आई थिंक 14 दिन तक नहीं होता, तो यू आर फ्री टू मूव एंड वर्क। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुगल किशोर आपका, डॉक्टर अनुपम प्रकाश और डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे, और जिन्हें नहीं मिले हैं वो कल जरूर देखिए, हमारे विशेषज्ञ कल भी आपके साथ मौजूद होंगे जो आपके सवालों का समाधान करेंगे। Absolutely, and Rajni, few takeaways basically. You can go and enjoy your festivals, but it's better if you can enjoy your festivals through video calling or virtually, I should say. And don't fear COVID, like Dr. Jugal Kishore also said. Don't fear COVID and don't take stress. And even if you get COVID, you don't have to worry about it. There are proper ways. There are proper isolation facilities. And keep washing your hands and don't worry at all. You don't have to be crazy about everything. Rajni. बिल्कुल, तो स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, पॉजिटिव रहिए, कोरोना पॉजिटिव मत रहिए, लेकिन मन के भीतर जो है उम्मीद बनाए रखिए। That's all we have in Dr. Speak. Stay tuned for more news and updates. Namaskar.